Okay, students, let us start with next chapter, separation of substances. Right? Bache, we see there are so many things around us. Okay? These things are mixture of one or two components. Sometimes we need to separate out these components. Now the question arises, why do we need to separate out these components? हमें इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत क्या है? Why do we need to separate out these components? Number one, to get useful substance. Sometimes all the components are not useful to us. Number two, sometimes to remove the undesirable components. Number three, to get the pure substances. Right? So, how to separate? सेपरेट करना कैसे है? उसके लिए ये एक बड़ी बात है कि क्या मेथड यूज होना चाहिए. सबसे पहले टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर की टाइप क्या है. राइट? सो 3 तरह की टाइप्स हो सकती हैं. आपके सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप्स हैं. राइट? अर्जुन, look up. So first is, there may be a solid in solid, right? Solid में solid components हो सकते हैं. Then come solid in liquid. Then comes liquid in liquid. Right? लिक्विड इन लिक्विड. नाउ अब हमें पता चल गया, जब भी हमने कोई चीज सेपरेट आउट करनी है, नाउ वी कम टू नो कि ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं. राइट? ओके, तो मेथड कौन सा यूज करना है? अगर दोनों कंपोनेंट सॉलिड हैं तो 4 मेथड्स कैन बी यूज्ड. हैंड पिकिंग, threshing, winnowing, sieving. Winnowing and sieving. Right? These are the 4 methods to separate out solid from solid substances. Now, if one component is solid, another is liquid, तो बच्चे 2 situations में arise. इस liquid में या तो वो solid dissolve हो जाएगा या वो dissolve नहीं होगा. अगर वो dissolve हो जाता है तो we say it soluble. If it does not get dissolved, we say it insoluble. Right? If it is soluble, so the method used should be evaporation. If it is insoluble, method used should be sedimentation, decantation, मैं बहुत कुछ पाती हूँ, then filtration, number 4 is churning or centrifugation. Right? ठीक है? Then next आ गया third type of mixture, if liquid is dissolved in liquid. Pranav, again 2 cases may arise. Either both the liquids get mixed or do not get mixed. If they are mixed, we say they are miscible. If they are not mixed, we say it is immiscible. You don't have any notebook to note anything? Your class is towards Arjun?
this sheet. Then अगर miscible है, if liquids get mixed, the process used is distillation. If the thing is immiscible, method used is decantation. Name of the method is decantation and the device that is used is separating funnel. हाँ जी नित्या. हरी अप, नोट डाउन, अगर करना है फटाफट से कर लो. After that we will start the explanation. You don't want to note anything? Come here. आपने भी नैतिक कुछ नहीं करना. Hurry up. फटाफट से बना लो इसको. Then we will be starting with the explanation. Good if you have done. नित्या आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना. Others are writing, okay? Hurry up, everybody. Hurry up. Let us move to explanation. हाँ जी. First is hand picking. Okay. What is hand picking? As clear from the name, it is hand picked. Picked by hand and separated out. बच्चे हैंड पिकिंग मेथड यूज करने के लिए इफ टू कंपोनेंट्स आर देयर तो कुछ कंडीशंस हैं. क्या? नंबर 1, both the components should be different in size. There should be a color difference. Number 3, the component should be visible and in a small quantity. ये नहीं है पूरे भर के ले लो और हैंड पिकिंग शुरू करो. नो, थोड़ा सा है, only then. For example, stones are removed from pulses, dal. Stones are removed from rice. हैंड पिकिंग. क्वांटिटी स्मॉल है, राइट? डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है दोनों कंपोनेंट्स का, एंड इन स्मॉल क्वांटिटी यू कैन यूज द हैंड पिकिंग मेथड. बच्चे जब भी आपको सेपरेशन आती है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट सी. सबसे पहले आपको देखना है कंपोनेंट कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है. Excuse me. मिक्सचर देखने के बाद देन यू हैव टू सी उसमें उस मिक्सचर के नीचे कौन से मेथड्स आते हैं.
देन उसमें से बेस्ट सूटेड मेथड क्या है, राइट? देन कम टू नेक्स्ट, हैंड पिकिंग इज क्लियर टू ऑल आई गेस। नेक्स्ट आ गया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है नैतिक? इट इज द केस वेयर stalks are tied into bundles, stalks are tied into bundles and they are beaten harshly on the ground, right, on the ground. So what happen is when they are beaten on the ground, grains from that stalk, they get separated. So what happen in this method? In this method, stalks are separated from the grains by beating them hardly on the hard surface of ground. कौन से राइस? चावलों को ऐसे अलग करते हैं, कनक को भी ऐसे ही करते हैं, राइट? स्टॉक एंड ग्रेन्स की एग्जांपल दी मैंने, ओके? देन थर्ड मेथड आ गया विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग? बच्चे, विनोइंग मेथड लिखने के दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, दो चीजें होनी चाहिए। इन दिस मेथड द कंपोनेंट शुड बी हैवियर एंड लाइटर। एक कंपोनेंट हैवी होना चाहिए, एक कंपोनेंट लाइट होना चाहिए। नंबर टू, एयर शुड बी ब्लोन, हवा चलनी चाहिए। व्हाट विल हैपन? लाइटर कंपोनेंट will blow up in the air and heavier component will be left, right? In this method you can separate, जैसे कि हम लोग सेपरेट करते हैं हस्क और ग्रेन। अब थ्रेशिंग से हमने स्टॉक से ग्रेन तो अलग कर लिए, बट उसमें अभी हस्क रहती है, तो हाउ टू सेपरेट? हमने उनको रख लिया, हवा चला दी, द लाइटर कंपोनेंट इट विल फॉल ऑफ एट further place and heavier component will remain here. ओके, जिस तरह हम सैंड और सॉडस्ट को सेपरेट करें, जो लक्कड़ का बुरादा होता है और सैंड है, उसमें सॉडस्ट जो है दैट इज हैवियर, वो दूर जाके, लाइटर वो दूर जाके गिरेगी। अगर सैंड गिरती है तो वो पास गिरेगी क्योंकि वो सॉडस्ट से हैवियर है, राइट? होती वो भी हल्की है बट इट इज हैवियर देन सॉडस्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मेथड आ गया सीविंग। बच्चे, मैं बार बार बता रही हूं, आप लोग कंफ्यूजन करते हो सीविंग और फिल्ट्रेशन में। अगर दोनों कंपोनेंट सॉलिड है तो सीविंग यूज होगी, अगर एक सॉलिड है एक लिक्विड है तो फिल्ट्रेशन यूज होगी। अगर आप सीविंग लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टी और टी लीव्स सेपरेट करने आए तो क्या करोगे? फिल्ट्रेशन। सीविंग नहीं करोगे क्योंकि एक कंपोनेंट लिक्विड है एक सॉलिड है। अगर आपको सैंड और स्टोन सेपरेट करने आए, सीविंग करोगे क्योंकि दोनों सॉलिड है, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए, कमिंग टू सीविंग। व्हाट इज सीविंग? इन दिस मेथड components of different sizes are taken, they are made to pass through the sieve, right? So the smaller components which are smaller than sieve, they will pass out of the sieve, and the components which are bigger than sieve, they may remain on the sieve. जैसे आप वो छानते हो ना, आटा छानते हो, तो उसमें क्या होता है, आटा जो है बारीक होता है वो सीव में से निकल आता है, और जो उसका भूरा होता है वो मोटा होता है, वो क्या होता है, उसके ऊपर रह जाता है, राइट? इस तरह कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर आपने देखा हो, उन्होंने एक ना टेढ़ी करके लोहे की सीव लगाई होती है, ठीक है, गाड़ी होती है बीच में डिग करी होती है, तो व्हाट दे डू इज सीमेंट जो होता है उसको, उसके अंदर अलग पत्थर होते हैं, तो वो उसको सेपरेट आउट कैसे करते हैं? ऐसे उसमें से पास करते हैं, जो सीमेंट है वो अलग निकल जाता है, पत्थर इधर ही रह जाते हैं, राइट? सो इन दिस वे दे कैन सेपरेट इट आउट, राइट? इज दिस क्लियर? इज दिस सॉलिड कंपोनेंट्स क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, हरी अप।
चलिए, नहीं है तो सॉलिड इन लिक्विड में आ गए। मैंने आपको आगे भी बताया, अगर हाँ जी कृष्णा को डाउट है जी, हाँ जी कृष्णा आप पूछिए बेटा। यस कृष्णा। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो मैम थ्रेशिंग मेथड है मैम, उसको मैम हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द स्टेम्स ऑफ व्हीट आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स। स्टेम अलग चीज होती है कृष्णा, स्टॉक अलग होती है। स्टेम होती है पूरी उसकी पूरी स्टेम, स्टॉक होती है जहां जिसमें स्टेम के साथ दाना अटैच होता है। राइट राइट कृष्णा। यस मैम। भावेश। मैम मैंने थ्रेशिंग का ही बताना था कि थ्रेशिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। बिल्कुल ठीक है, बीटन ऑन द ग्राउंड। कहां पे बीट करते हैं? ऑन द ग्राउंड और हार्ड सरफेस। राइट ओके, नेक्स्ट आ गया। हाँ जी बेटे। विनोइंग भी कर सकते हैं बट सीविंग ज्यादा बेटर मेथड है, उसमें वेस्टेज नहीं होती। हाँ जी, आपने कुछ कहना था ऋत्विक? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सॉलिड इन लिक्विड। एज आई टोल्ड यू, अगर लिक्विड में सॉलिड मिक्स है तो दो केसेस होंगे, इधर वो सॉल्युबल होगा, इधर वो इनसॉल्युबल होगा। अगर सॉल्युबल है जैसे कि शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्युबल है ना, तो हाउ टू सेपरेट? इवेपोरेशन मेथड। गरम करो, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज सॉलिड कंपोनेंट। जिस तरह हम सी वाटर में से सॉल्ट निकालते हैं, कैसे सॉल्ट निकालते हैं हम? सॉल्ट इज मिक्स्ड इन सी वाटर, राइट? वी कलेक्ट द सी वाटर इन बिग पिट्स कॉल्ड लगून्स। लगून्स बोलते हैं उनको, उनके अंदर कलेक्ट कर दिया, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड and what is left behind is salt. Is that clear? This is evaporation. Next aa gaya, if case is insoluble, then there are four methods: sedimentation, decantation, filtration and churning. बच्चे जिन जिन के डायग्राम्स हैं, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमें उनके डायग्राम्स साथ ड्रॉ करने होते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे सेडिमेंटेशन है, इसमें क्या होता है? एज क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द सेडिमेंटेशन, द इनसॉल्युबल कंपोनेंट एंड मतलब द मिक्सचर, इनसॉल्युबल मिक्सचर, इट इज अलाउड टू settle down, right? It is kept undisturbed for few hours. For example, we have mixture of water and mud. We keep it undisturbed for few hours. For few hours. अगर हमें प्रॉपर चाहिए, मिनट्स में तो बस थोड़ी सी होती है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी, मड बीइंग हैवियर, क्योंकि हैवी है, it will settle down at the bottom and water will come at the top. This process is known as sedimentation. अब यहां पे आप लोग लेबलिंग नहीं करते हो, this heavier component, it is known as sediment और इसको हम बोलते हैं वाटर। बच्चे मैंने बोला we have to keep it undisturbed for few hours, means it take a lot of time, right? So sedimentation is a long process, but to increase the rate of sedimentation,
to fasten the rate of sedimentation, we can do loading. What is loading? In this potash alum, it can be suspended in the mixture. This potash alum क्या होता है, सारे मड पार्टिकल्स फटाफट इसको स्टिक कर जाते हैं, ये ज्यादा हैवी हो जाती है और ये फटाफट नीचे लेके आ जाती है. ठीक है, अपने आप वो नीचे बैठे, उसको ज्यादा टाइम लगता है. इसमें सारे इनसॉल्यूबल चीजें इसको स्टिक कर जाएंगी. जब इसको स्टिक कर गई, ये भारी हो गई, इट कम्स डाउन, जल्दी नीचे आ जाएगी. राइट? इस तरह सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज फास्टेंड. दिस मेथड इज नोन एज लोडिंग. जैसे कि हवा में भी ऐसे ही होता है. डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर. डस्ट पार्टिकल्स जो है एयर में भी सस्पेंडेड हैं, अभी पड़े हुए हैं, नीचे नहीं आ रहे. व्हेन इट रेन्स, तो क्या होगा, रेन जब नीचे आ रही है वो उसके साथ अटैच होके फटाफट नीचे आ जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो लोडिंग. इसीलिए बारिश के बाद मौसम ज्यादा क्लियर हो जाता है, बिकॉज ऑल द डस्ट पार्टिकल्स गेट सेटल्ड डाउन. इज दैट क्लियर? इज सेडिमेंटेशन लोडिंग क्लियर? अब हाँ, पोटाश अलम नहीं, ऑल द अदर इम्प्योरिटीज, ऑल द अदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. ठीक है, अब सेडिमेंटेशन हो गई, सेपरेशन हो गई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज और वाटर की. अब इनको सेपरेट आउट कैसे करना है? बाय द मेथड ऑफ डीकैंटेशन. डीकैंटेशन क्या होती है? टेक अ बीकर, रख दिया मैंने. अब मैंने ये वाला बीकर उठाया, इसमें सेडिमेंट्स को मैंने नहीं हिलाया, सिर्फ पानी को मैंने धीरे धीरे पोर कर दिया into another beaker. Now this process is decantation. Gently pouring of water into another beaker without disturbing the sediments is known as decantation. आपके घर में मम्मा चावल दाल होती है, उसमें क्या करते हैं, वो बर्तन में दाल चावल लिए, पानी डाला, जब उन्होंने पानी रिमूव करना है वो उसको डीकैंटेशन कर देते हैं. पानी रिमूव हो जाता है, दाल और चावल वहीं पे पड़े रहते हैं. दिस इज डीकैंटेशन. वो अलग बात है, उस केस में पानी जो है वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, दाल चावल चाहिए, हम वो रख लेते हैं. राइट? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ गया फिल्ट्रेशन. अब सेडिमेंटेशन डीकैंटेशन से फिल्ट्रेशन ज्यादा बेटर है. विच इज मोर बेटर नैतिक? सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन और फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसमें इंप्योरिटीज ज्यादा रिमूव होती हैं. नाउ व्हाट इज फिल्ट्रेशन? इसमें क्या होता है, जैसे कि हम टी लीव्स और टी को सेपरेट आउट करते हैं. ठीक है, चलिए अब इस केस में फिल्ट्रेशन की डायग्राम बना रही हूं. दिस इज funnel which is to be taken, right? इसके अंदर we place a filter paper. What is filter paper? It is a special kind of paper with millions of holes in it. It allows very small particles of water to pass through it. ठीक है? Now here we are adding same muddy water. ये मैंने muddy water इसमें ऐड किया है. So what will happen? Insoluble impurity will stay here and only water will pass out. Right? जैसे आप यहाँ पे चाय वाली छन्नी ले लो,
जिससे आप चाय पुनते हो, उसके ऊपर चाय डालते हो, टी लीव्स जो होते हैं, पत्ती होती है, वो ऊपर ही रह जाती है, चाय पास आउट कर जाती है. सो दिस प्योर वाटर इज नोन एज filtrate. Filtrate. This is insoluble impurity. This is funnel. This is filter paper. This is muddy water. और ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी का एक और नाम होता है रेजिड्यू. हाँ जी भावेश. भावेश मैंने कहना था जो आपने फिल्ट्रेशन का डायग्राम बनाया है मैम, वो दूसरे स्टैंड वाला नहीं बनाना. क्या नहीं बनाना? क्या नहीं मैम बनाना? जो फिल्ट्रेशन वाला आपने जो डायग्राम बनाया मैम, वो एक हाँ, उसमें क्या? भवेश समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? मैम वो फिल्ट्रेशन वाला जो डायग्राम है मैम, उसमें स्टैंड वाला जो डायग्राम बेटा स्टैंड बना लो. मैम, जो स्टैंड वाला डायग्राम होता है. ये स्टैंड बना लो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. ये लो, ये स्टैंड भी बना लिया हमने. अब ठीक है? ठीक है जी, राइट. चलिए अब डायग्राम ड्रॉ कीजिए फटाफट सारे बच्चे, एवरीबॉडी. आगे बाद में कराएंगे, 2-3 मिनट रह गए हैं. फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कीजिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के. हरिडली एवरीबॉडी. हाँ जी, व्हाट डू यू वांट अ स्पेशल नोटिस? ड्रॉ इट एवरीबॉडी. बनाइए फटाफट. हरी अप एवरीबॉडी. ये उठाइए नीचे से. Hurry up everybody. Make it neatly with proper labeling. Filter paper is made of special kind of paper, Satvik Mehta, with millions of holes on it, right? Small pores on it. Yes.